Okay, so now our next topic for today is machine learning. That's the next unit we are starting with. Okay. Mm, let's move on to. We have done the introduction about it in the first term. Okay. And to start with, I would just say that a basic understanding of what is AI and what is machine learning. Yeah, machine learning is a part of AI. AI is a part of machine learning. What's the entire story like? तो समझने का एक बेसिक सा तरीका है दैट इज देयर आर सर्टेन थिंग्स वेयरइन वी आर मेकिंग मशीन टेक डिसीजंस फॉर अस बिहेव लाइक ह्यूमन ब्रेन्स टेक डिसीजंस फॉर अस जिसके के अंदर हम उसको सारे रूल्स बता देते हैं रूल बुक इज देयर विद हिम there are certain decisions in life which a human takes based on the rules he's been fed throughout. ठीक है वो सेट रूल्स है उसको कोई चेंज नहीं है उसमें उससे उसको कुछ डिराइव नहीं करना राइट सो दैट इज द प्लेस वेयर द मशीन इज नॉट लर्निंग एनीथिंग बिकॉज द ह्यूमन इज ऑल्सो नॉट लर्निंग उसको बता दिया गया है सुबह उठ के ब्रश करना दैट्स अ रूल फॉर हिम ही डजंट हैव टू थिंक कि आज इट्स अ क्लाउडी डे तो शुड आई ब्रश और नॉट आज मैं 9 बजे उठा तो शुड आई ब्रश और नॉट नथिंग लाइक दैट ठीक है सो एआई में तब overall of course machine learning is definitely part of AI but something which is AI and not machine learning that is where I am following or I'm having a system सिस्टम विच इज मिमिकिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब वो कुछ इंटेलिजेंट काम कर रहा है बट उसको रूल्स दे दिए गए इट्स लाइक अ प्री प्रोग्राम सेट उसमें वो कुछ एज सच लर्न नहीं करता ठीक है बट व्हेन आई एम सेइंग मशीन लर्निंग व्हाट इज हैपनिंग इज आई एम ट्रेनिंग हिम विद अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन then I am giving him a new set of information and then I expect based on what he has been given in the previous learning part or the training part he is able to implement that in the new set of data what I have given him. Okay, if that is happening, then I'm calling that the system is exhibiting or performing machine learning. What sorts of multiple sorts of learning is involved. We'll go by that, and then we have to see the algorithms implemented, जो हमने first term में नहीं किया था. We had just had an introduction about it in the first term. So I'll go by the introduction very fast, and then we concentrate on what we are meant to do today. Basic definition, of course, it is focusing for the computers to learn from the data and make decisions without being explicitly given the rules, without being explicitly programmed. अगर मैंने प्रोग्राम में ही उसको बता दी वो चीज तो उसने कुछ नहीं सीखा ठीक है वो तो रूल है वो दिया हुआ है like the best example possible which I can give you here to understand it quickly is that supposingly I am talking about calculation of square root ठीक है now you have been made to learn the process of how to calculate the square root आपको वो चीज सिखाई गई है ठीक है ना आपने क्या किया आपने सीखा फिर जब भी कोई नया नंबर आया आपने स्क्वायर रूट निकाल दिया उसका राइट दैट इज द प्रोसेस यू फॉलो नाउ व्हाट आई एम डूइंग टू माय मशीन इज दैट वन इज आई गिव हिम अ फॉर्मूला मैंने उसको बता दिया भैया ये इनपुट आएगा ये फॉर्मूला है इसको इम्प्लीमेंट करो इसमें ये वेरियस अदर केसेस हो सकता है इफ यू गिवन अ नेगेटिव नंबर तो कैसे हैंडल करना है इफ यू गिवन अ डेसिमल पॉइंट नंबर तो क्या बोलना है यूजर को एटसेट्रा एंड देन दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड डन ओके ओवरऑल बट नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ये एक प्रोसेस हो गया ये एक तरीका हो गया दूसरा तरीका क्या है कि हम उसको एक सेट ऑफ 1,000 नंबर्स दे रहे हैं विथ इट्स स्क्वायर रूट्स 1,000 set of numbers with its square root values I provide him for training ठीक है now what am I expecting from him I am expecting that the machine is going to learn the pattern कि अगर 100 है तो वो 10 है स्क्वायर रूट अगर 50 है तो वो सपोज 5 है सपोजिंगली आई एम जस्ट सेइंग दैट तो किस तरीके से ये कैलकुलेट होगा and because I'm giving him 1,000 inputs he should be able to or maybe 1 lakh inputs he should be able to design his own formula तो उसने सीखा उस डेटा में से और अब वो नया डेटा जब मैं उसको दे रही हूँ I'm giving him सपोजिंगली मुझे 5 लाख का स्क्वायर रूट निकाल के दो तो he should be able to implement that वो जो भी सीखा है अब 5 लाख का अगर स्क्वायर रूट सपोजिंगली 2 लाख है सो 2 लाख एग्जैक्ट अगर उसने आंसर दे दिया बहुत बढ़िया अगर 2 लाख ना देके उसने 1.9876 लैक्स दिया सो देन वी कैलकुलेट कि उसका एक्यूरेसी कितना है इज इट अ 93% एक्यूरेसी 95% एक्यूरेसी 80% एक्यूरेसी
सो हमें वो कैलकुलेशंस करनी होती है उसके बाद मॉडल ने कितना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया मेरा नया आंसर। ओके, आई थिंक द प्रोसेस इज क्लियर इन योर माइंड नाउ कि मैंने उसको फॉर्मूला दिया ही नहीं। आई हैव गिवन हिम द इनपुट, अगर इनपुट ये है तो आउटपुट ये होना चाहिए। इस तरह के मल्टीपल डेटा सेट्स मैंने उसको दे दिए। एंड नाउ आई एक्सपेक्ट द मशीन टू लर्न फ्रॉम इट एंड डिवाइज इट्स ओन फॉर्मूला प्रोसेस। एंड जब उसको मैं नया नंबर दूंगी ही शुड बी एबल टू गिव मी द आंसर। एंड देन if that model is perfectly fine, my answer also should be perfectly fine. Okay, that is the basic thing what we are trying to get our machine to do. And we learn to code also कि इस तरह की चीज अगर मुझे करनी है तो वो कैसे करेंगे हम पाइथन में। ठीक है, now let's go a little further about it. It learns from the patterns and relationships in data because उसने पैटर्न खुद निकाला। अगर 100 है तो वो 10 आ रहा है, अगर वो 25 है तो वो 5 आ रहा है, कैसे आ रहा है। This allows them to generalize and make decisions on new unseen data. वो खुद उसमें से पैटर्न निकालते हैं, रिलेशनशिप निकालते हैं और फिर वो जनरलाइज करके नए डेटा पे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस आर मेनी, वेदर इट्स रिकमेंडेशन सिस्टम में भी मैं उसको कुछ ऐसा इनपुट नहीं दे रही हूँ। वो मेरा स्कैनिंग देखता जा रहा है कि मैं क्या स्कैन कर रही हूँ, व्हाट एम आई सर्चिंग, व्हाट एम आई सीइंग, व्हाट एम आई क्लिकिंग, व्हाट एम आई लाइकिंग, व्हाट एम आई डिसलाइकिंग। उस पूरे इनपुट से ही इज कमिंग टू सम कंक्लूजन and based on that he's recommending. At times I don't take away the recommendation or at times I may go about it. ठीक है, so इस तरह के applications we are doing. Chatbots में from the answers which I give he keeps on learning. He is getting better day by day. ठीक है, और जो दूसरे तरह के chatbots होते हैं, chatbot is an application, it's an AI application only as we call it, but is that chatbot rule based? तो उसको सब कुछ दे रखा है, हाय बोलो तो ऐसा बोलो, हेलो बोलो तो ऐसा बोलो, टाइम बोलो तो ये बोलो, वेदर बोलो तो ये बोलो, सब कुछ दिया हुआ है उसको मैंने। हाँ, ही इज इंटेलिजेंट एनफ कि वो सेंटेंस में से वो वर्ड ढूंढ के ही इज एबल टू डू इट। हम लोग जब गूगल चैटबॉट डायलॉग फ्लो में बनाएंगे तो यू विल सी दैट कि वो उसमें से थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस निकाल रहा है, आई मीन यूज कर रहा है डेफिनेटली, लेकिन उतना नहीं। ही इज नॉट लर्निंग। इफ ही इज नॉट लर्निंग देन यू कैन नॉट कॉल हिम रेप्लिका ऑफ ह्यूमन बीइंग, because learning is inherent quality of a human. At times we don't even realize that our system is getting updated. आपका विजन चलता रहता है कॉन्स्टेंटली, आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, आप देखते रहते हो और आप उसमें से अडेप्ट करते रहते हो, उसमें से सीखते रहते हो, उसमें से जानते रहते हो कि अच्छा ये हुआ, अच्छा वो हुआ। यू सी अ चाइल्ड प्लेइंग, यू सी समथिंग ऑन द टीवी, मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो, बट वो चीज आपके कान में जा रही है, यू लर्निंग, यू गेन समथिंग ऑन द अदर ऑफ दैट। ठीक है, सो वो चीज मशीन में इनहिबिट कराना है, एग्जिबिट कराना है मशीन से हमको। दैट इज द वर्क ऑफ एमएल सिस्टम। व्हाट काइंड ऑफ challenges does ML face? Overfitting, a very very significant term from exam point of view, followed by the word bias. We have a full unit on bias, तो हम पढ़ेंगे, but basic मतलब of overfitting and bias is that ओवरफिटिंग में जैसे मैंने एग्जांपल दिया स्क्वायर रूट कैलकुलेशन का, जो मैंने 1000 वैल्यूज उसको दी टू ट्रेन, उसके बाद अगर मैंने क्वेश्चन में जब उससे पूछा तो मैंने 100 ही पूछा उसको, जो ऑलरेडी उसके पास उसका आंसर है, तो परफेक्टली मुझे आंसर कर देगा, उसका तो इनपुट ही उसके पास ऑलरेडी है। तो दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज कॉल्ड एज एन ओवरफिटिंग सिचुएशन, कि मॉडल बहुत गुडी गुडी सा आंसर दे रहा मुझे, बिकॉज आपने उसको अनसीन डेटा पे टेस्ट नहीं करा, आपने उसको ट्रेनिंग डेटा के ही पार्ट में टेस्टिंग करी, तो उसको तो वो पता था, है ना। अगर आपके एग्जाम पेपर में वही सेम क्वेश्चन उर्वशी मैम दे दे जो उन्होंने क्लास में करवा रखा है, होमवर्क में दे रखा है, आपको 4 बार वो चीज वो क्लास में एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ वो करा चुकी है, एंड यू डू वेल इन द पेपर और दैट अटेम्प्ट ऑफ द क्वेश्चन, इट इज एन ओवरफिटिंग सिचुएशन है। अगर मैम ने उसको किसी और सिचुएशन में इंप्लीमेंट करके वो आपको क्वेश्चन दिया होता है एंड देन आप उसको सॉल्व कर पाते, देन आई वुड हैव सेड दैट यू हैव लर्नड समथिंग। अदरवाइज इट इज एन ओवरफिटिंग सिचुएशन, वो तो इंसान रट के भी आंसर कर देता है। आपने 4 बार किया, आपको प्रोसेस ही रट गया, आपको आंसर भी रट गया। टाइम्स हमको पता होता था आंसर, जब हम क्वेश्चन करते थे कि ये तो मैम का कराया हुआ क्वेश्चन है ना। सेम थिंग, until unless he is doing something new, you are not sure whether he has really learned anything or not, right? So that is going to be on the training data and testing data, इसीलिए हम कहते हैं अलग होना चाहिए, जिस पे ट्रेन किया उस पे टेस्टिंग नहीं करना, वो अलग से होना चाहिए हमेशा। And bias in the training data is again a very significant thing. If your data is biased, तो आपका prediction will not be ठीक। Now, obviously, the example which I give you
gave you just now, उसमें bias is not applicable, but there are many practical situations in life where the bias is applicable. We'll talk about bias later. I'm really not getting into the bias as of now. Now, these are the terms you've done in first term, so I'm not going to focus much on that. Just a quick recap of it. Three types of learning, as we say: supervised, unsupervised, reinforcement learning. In the case of supervised, I've highlighted what is significant. One is the label data. मैंने बता दिया उसको ये फोन है बेटा, हर तरह का फोन दिखा दिया मैंने उसे, ठीक है. And I also showed him this is the adapter of the laptop, right? So I'm telling him, I'm giving him 100 pictures and I'm telling him कि ये ऐसा है. This is a hand. So I gave him all angles and all things of the hand. है ना? Teachable machine हमने करा. Did we do teachable machine? Did we practice teachable machine as an activity in the first term? Anybody? Yes, ma'am, you give it as that activity, So you we must have had to submitted it. yes, so you must have done it. And there you found that we designed applications there. Machine learning के लिए ही है वो चीज कि हमने विजन बेस्ड एप्लीकेशन बनाया, उसको ट्रेन किया, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑफ लेबल्स उसको दिए और फिर उसको एक नया लेबल दिया, एक नया चीज दिया और बोला कि आप जज करके बताओ कि ये क्या है. ओके, सो ही इज गोइंग टू मैप योर इनपुट विद द outputs you already have, output labels you already have, and give you the answer. Okay, the two primary algorithms being used here, हमने वहीं तक करा था, उसके बाद we didn't do in the first term. Now we're going to actually learn about the two algorithms. One is regression and one is classification. Classification works on discrete data. इसमें की specific set of values है. Like if I'm saying gender, so you have a male and a female, or maybe a third gender if you want to consider. So three values. इसके अलावा इसमें और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता, right? Similarly, when you talk about something else, maybe results, so you have a pass and you have a fail, or maybe a distinction. Three values I'm talking about, very specific. So इस तरह का जब चीज है, so I'm talking about a classification model. Regression is where you have a continuous data, मतलब even 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.47, 9.89, 9.73 इतने values हो सकते हैं in a range, right? So continuous values when you have continuous data like height or speed or temperature, salary, time, all these information जब हम लोग कंसिडर करके कुछ चीज बना रहे हैं तो वहां पे हम लोग रिग्रेशन वाला एनालिसिस मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, नॉट द क्लासिफिकेशन वाला. ठीक है. कमिंग टू अनसुपरवाइज्ड, नो लेबलिंग इज बीइंग डन. हम उसको पूरा का पूरा चेक उठा के दे देते हैं, अब तुम खुद लेबलिंग करो उसको. ठीक है, तो वो उसमें से कलर के बेस में बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे खुद ही खुद ग्रुपिंग करता है. हेंस हियर द algorithm being used is clustering or associations. ठीक है, we do a little bit of things in this category also. The third one being the reinforcement learning. And in the reinforcement learning, as we have seen in the gaming application, specifically there, we can understand this thing better, that the machine learns with the trial and error. आपने करेक्ट किया उसको तो वो पॉइंट उसको +1 मिला, आपने उसको आपने गलत स्टेप ले लिया तो आपका स्कोर -1 हो गया. तो दैट वे मशीन स्टार्ट्स लर्निंग. Like हम लोग we play games like this one, rock paper scissors with the machine. Initially, it is not able to beat us, but with time, if you play multiple trials, then you will find that at one point of time, he is able to beat us also. वो जीत जाता है हमसे. क्यों? क्योंकि उसको हमारा इंटेंशन, हमारा पैटर्न, हमारा वो समझ में आ जाता है कि हम कैसे खेल रहे हैं. Similarly for chess also, similarly for other games which are happening, reinforcement learning is really coming into play from there, where the agents are adapting its behavior from the past experiences of the user. It is gaining the pattern from there. Okay? So these are the three categories. And here we have to concentrate as per syllabus on these three algorithms. One is regression, one is classification, and the third one is clustering. Now we start with the classification. So classification में we understand the process. अगर आपने teachable machine किया है तो वो best example है classification model का. But if you talk about the steps in general, we are saying that we first divide the data into different classes. Like मैंने बोला, मैंने एक class teachable machine को अगर आप थोड़ा सा याद करो, so we have defined एक phone का class, एक
बैटरी का क्लास, अडेप्टर का क्लास, उसके बाद आपने एक पेंसिल का क्लास बनाया, एक रबर का क्लास बनाया, तो उसके अंदर आपने पिक्चर्स ऐड करे, लेबल्ड, लेबल हो गया ना, तो आपने बोले ये सारे पिक्चर्स फोन के हैं, ये सारे पिक्चर्स अडेप्टर का है, ये सारे पिक्चर्स पेन का है, तो लेबलिंग हो गई है ना। ऐसे ही हम इनपुट उसको दे रहे हैं, तो वो हमारा पहला स्टेप है। फीचर्स और एट्रीब्यूट, जब आप उसको इनपुट दोगे तो वो अकॉर्डिंगली वहां से फीचर्स और एट्रीब्यूट्स एक्सट्रैक्ट कर लेगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इनपुट यू आर गिविंग इट। फिर उसको आप ट्रेन करते हो। जब सारे पिक्चर्स आप डाल चुके होते हो, उसके बाद यू क्लिक ऑन अ बटन टू ट्रेन। अब वो सारा का सारा उसको लर्न करता है, मशीन, एंड इसके बाद वो मॉडल आपको रेडी हो जाता है, एंड देन यू स्टार्ट विद द प्रोडिक्शन, दैट यू गिव हिम अ न्यू डेटा एंड ही इज एबल टू प्रोडिक्ट द लेबल एसोसिएटेड विद दैट डेटा। कितना एक्यूरेटली, कितना क्या है, वो आपका फिर टेस्ट में है। राइट, सो दीज आर द स्टेप्स, क्लासेस और कैटेगरीज बनाना, फीचर्स और एट्रीब्यूट्स एक्सट्रैक्ट करना, ट्रेन करना डेटा को, मॉडल को रेडी करना, और फाइनली उस पर प्रिडिक्शन चेक करना। Now there are various categories of classification models which we have to understand. Four main types. Number one being binary. As the word bi means two, right? So where you have two labels only corresponding to a particular class. Like I'm saying, category of gender, when I said it's male or female for me. Okay, if I'm talking about students, so I've got boys or girls. If I talk about vehicles, I've got cars or trucks. Or any situation where you got two labels, like if I've given pass or fail. So you've got two labels here. So किसी का भी आप जिसका two labels consider कर रहे हो, that is my binary classification. Similarly, binary means दो है, multiple classes means जहाँ पे आपके multiple classes है। If I'm saying animal का एक class बना है, तो उस एनिमल क्लास में तुमने सारे डॉग, कैट, रैबिट, हॉर्स सबकी फोटो डाल दी। एक और क्लास बनाया बर्ड्स का, उसके अंदर तुमने भाई क्रो, स्पैरो, पिजन सबकी फोटो डाल दी। सो दे आर ऑल belonging to the same class. Multiple classes are there in that. Multiple labels are there, sorry, in that particular class. Okay, so that is the second category. Third is multi-label. Now, ये थोड़ा सा confusing है, though I am myself not convinced with it, but yes, that is how the book defines it. Multi-class and multi-label. I'm taking you to that example first, because this is something I feel significant from your exam point of view also. Now see this. Actually, it is being used very much in the photo tagging systems. Facebook और Instagram या Snapchat जहाँ भी फोटो टैग करा जाता है, वहाँ पे you can understand this thing very better, very much well. Like in this case, multi class में क्या हो रहा है कि एक ही क्लास है, मतलब सॉरी, एक ही कैटेगरी आप बोल सकते हो, और उसके अंदर मल्टीपल क्लासेस है, dog, cat, horse, mouse, multiple classes under the animal label, right? अब जब एक फोटो आपने दिया उसमें एक ही एनिमल है, तो उसमें से वो इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि अच्छा भैया ये डॉग है। सो 70% फॉर हिम इट इज अ डॉग, 1% कैट, 1% हॉर्स, एंड सॉरी 10% कैट, 10% हॉर्स, एंड 10% माउस एज पर हिज एनालिसिस। बट इट इज मेजोरिटी वन लेबल इज ओनली देयर हियर, ठीक है। मल्टी लेबल के अंदर you will giving a picture which has dog also, which has cat also, which has a house also, which has got a park also, which has got a cycle also, which has got multiple labels, अलग 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 कैटेगरीज है उसके अंदर, ठीक है। तो एक उसने उसी में से निकाला कि इसमें डॉग भी है, इसमें कैट भी है, इसमें साइकिल भी है, इसमें हाउस भी है, इसमें सन भी है, सब कुछ है एक ही के अंदर, एक ही पिक्चर के अंदर, ठीक है। सो मल्टीपल लेबल्स के अंदर हम बोलते हैं कि एक ही सिचुएशन में एक ही जगह पे यू हैव मल्टीपल लेबल्स, एंड मल्टीपल क्लास के अंदर यू हैव गॉट सिंगल क्लास ही है, बट यू हैव he'll come up with a single label only here, technically अलग अलग क्लासेस हैं लेकिन he'll come up with a single label only. In this case you have got multiple outputs coming in. ये डॉग भी है, इसमें कैट भी है, इसमें अगर एक छोटा सा सन होता है, या यहाँ पे एक साइकिल होती है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा होता है, तो वो भी, उसको भी हम लोग पिक करते हैं, ठीक है। सो मल्टी क्लास एंड मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
So multi-classes where the labels are multiple, so that you correlate with the binary classification. तो easy रहेगा याद रखना. And multi-label के अंदर है when you have multiple classes in one frame. Multiple classes. एक class animal का है, उसके अंदर फिर you have multiple labels. Then you have one class of vehicles. उसके अंदर you have multiple labels like there's a cycle also, there's a scooty also, there's a small car also. ठीक है, like that. So multiple classes in one frame when you have, you're calling it to be as a multi-frame, multi-label classification. And imbalanced classification is also dividing your data into majority minority group. Okay. Like I was saying that out of 10 emails, only 2 are spam. Rest 8 are good. ठीक है, या कोई you're trying to judge some calls you're receiving. So therein only 2 or 3 are spam calls. Rest are all okay. Fine. So fraud detection में ये वाला जो आपका सेट है imbalance classification, that's one of the best example because everything is not a fraud. आपको वही तो जज कर, और उसमें you will find कि majority नहीं है, minority cases में it is happening. Okay, classification task with unequal distribution of class labels. एक तरफ बहुत majority chunk है और एक तरफ minority chunk है. Right? That is my fourth classification. So you've got here 4 categories. Binary जिसमें 2 ही labels हैं, multi class जिसके अंदर multiple labels हैं, multi label जिसके अंदर multiple classes हैं, categories ही multiple है. ठीक है. And then we have imbalance जिसके अंदर unequal distribution है. These are the keywords to remember. Now you are going to tell me which one in out of these 2 pictures is a multi-label and which one is a multi-class. Come on, Bhuman and Mavani. Which one? First one. This particular one. It is multi-class. First one. Okay. Bhuman, what do you say about it? And the second one is multi-label. देखो इसमें क्या है, इसमें हर एक फ्रेम में ना एक इंडिविजुअल है. First is multi-class. Okay, Bhuman also has the answer. Okay, and the second one is multi-label. Right. ठीक है, बिकॉज एक ही फ्रेम में यू गॉट मल्टीपल क्लासेस. इस केस में एक एक लेबल है एक के अंदर, सो नो प्रॉब्लम. ठीक है, इस तरह के डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी आपके पेपर में हो सकते हैं. नाउ मूविंग फर्दर, what we have here is the algorithm being used. अब इसको भी ना आप देखोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, but it is actually a very simple process. Fine, let's take it. It's called the KNN algorithm, जो classification के लिए use होता है. What is the meaning of KNN? Literal meaning of it: K, nearest neighbor. Okay, nearest neighbor. The significance of the word K because K actually defines कि तुम कितने neighbors consider कर रहे हो. 4, 5 classes उसमें से आप उठाओगे. No, K is a number which we decide. I can take it as 5 also, I can take it as 10 also, I can take it as 15 also. Depends upon my कितना chunk of data है, कितना उसमें से हमको consider करना है. So that is the value K. Okay? So like हम लोग nth number बोलते हैं ना, run the loop up to n value. So similarly, K is a number which user has to provide or your algorithm has to consider situation wise. So K is that number and nearest neighbor algorithm. हाँ, अब इसका जो क्विक समझने वाली चीज है वो ये है कि आपके मॉडल के पास कैटेगरी ए में ये सारा इनपुट है, बहुत आराम से क्लासिफाई हो गया. कैटेगरी बी में जो जितने भी इनपुट्स आए ये वाले कैटेगरी बी में चले गए आराम से, नो प्रॉब्लम. ठीक है, अब एक नया इनपुट आया जो कि था ये पर्पल वाला पॉइंट जो इन्होंने दिखाया यहाँ पर, न्यू डेटा पॉइंट. Now it is neither directly moving into category A nor moving into category B as of now as we see. Now आपको डिसाइड करना है कि आप इसको कौन से लेवल में डालोगे, कैटेगरी ए में डालोगे या कैटेगरी बी में डालोगे. ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेगा सिस्टम?
अब उसको एग्जैक्ट नहीं मिला। अगर टीचेबल मशीन का आपको आउटपुट बाई चांस याद हो, तो वहां पे जब हम उसको दिखाते थे फाइनली, मेरा टेस्टिंग थिंग, तो वो नीचे ना वो दैट प्रोग्रेस बार इज टू ब्लिंक, आई मीन स्लाइडर, कि अच्छा ये अभी ये मुझे ऐसा लग रहा है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ पे अभी उसको क्लासिफाई तो करना पड़ेगा, इनपुट आया है तो उसको आइदर उसको ए में डालना है, बी में डालना है, उसको बीच में तो छोड़ नहीं सकते अगर दो ही लेवल है। ठीक है। सो इसको निकालने का तरीका क्या है? फाइन। नाउ नियरेस्ट नेबर क्या बोलता है कि भाई ये अगर तुम्हें लगे कि ये ब्लू वाले चंक के नियर बाय है, तो इसको इसमें डाल दो। इसके फीचर्स ज्यादा आ रहे हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर डाल दो। अदरवाइज अगर बी वाला कैटेगरी ज्यादा नियर है, तो उसके अंदर डाल दो। ये नियर भी कैसे निकालता है, अ प्रॉपर प्रोसेस। अब हम तो फिगर में देख के बोल सकते हैं, वो भी इसमें तो पता भी नहीं चल रहा, इट्स वेरी वेरी क्लोज। बट उसमें भी यू कैन एक्चुअली मेक आउट फ्रॉम हियर दैट he actually calculates the distance of this to from every point, other point, सबका डिस्टेंस निकालता है। तो इफ यू सी तो यू विल फाइंड दैट इधर वाले जो वैल्यूज है उसका डिस्टेंस मेजोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ये वाला। फाइन, लेट्स सी द थिंग। सो बेसिकली उसको क्या करना है, जो नया डेटा आया है बेस्ड ऑन डिस्टेंसेस, he has to finally decide where to put him, either in category label A और category label B। उसके लिए I'll come to these applications and limitations and all। स्टेप्स पे भी मैं बाद में आऊंगी, पहले डायग्रामेटिकली स्टेप्स को समझ लेते हैं, अदरवाइज ये पॉइंटर्स समझ नहीं आएंगे। लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। So as per the user, I have, as per the classification model, I have this class, class 1, and I have this class, class 2. So all my yellow boxes, yellow circles, and my gray circles. और एक ये जो बिना किसी फिल का सर्कल है, दैट इज माय न्यू पॉइंट। ओके। नाउ आया इनपुट आया, ठीक है, दैट्स माय स्टेप 1। नाउ स्टेप 2 में वो डिस्टेंस निकालता है। सबसे देखो वो सबसे डिस्टेंस निकालता है, ऑल द अदर इनपुट्स व्हाट ही हैड। एंड ये डिस्टेंस निकालने का भी देयर इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट्स कॉल्ड द यूक्लिडियन डिस्टेंस, एंड दिस इज व्हाट वी फॉलो। ओके। सो उसने सारे पॉइंटर्स से यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाला, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाला, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाला, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाला। सिमिलरली सारे ग्रे सर्कल्स के भी उसने डिस्टेंसेस निकाले, ऐसे ऐसे करके वन बाय वन निकाल लिया। एंड ऑल द डिस्टेंसेस हैव बीन नंबर्ड D1 D2 इंडिविजुअली नंबर्ड, कोई ओवरलैपिंग नहीं है यहाँ पे। नाउ व्हाट इट डज, मिनिमम टू मैक्सिमम उसने डिस्टेंसेस को अरेंज किया ओवरऑल सेट को लेके। मतलब ये नहीं कि ऑरेंज में, सॉरी येलो के अंदर मिनिमम टू मैक्सिमम एंड देन ग्रे के अंदर मिनिमम टू मैक्सिमम, नो, सारे डिस्टेंसेस को एक साथ लिया और उसको सॉर्ट मार दिया, सिंपल एज दैट। ठीक है, और उसको अरेंज कर लिया। फाइन। सो आई नो कि भैया इवन इन बोथ द क्लासेस में किस में वो मिनिमली एसोसिएटेड है, किसके साथ उसका मिनिमम डिस्टेंस है। आ गया। लाइक फ्रॉम हियर आई कैन मेक आउट दैट D4 D1 D5 में डिस्टेंसेस धीरे 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 बढ़ रहा है। मिनिमम, सबसे मिनिमम डिस्टेंस है D4 के साथ, उसके बाद है D1, उसके बाद है D5, लाइक दैट, सॉर्ट कर लिया उसको। अब इज द रोल ऑफ K। नाउ K you may take all 11 K, you may take 20 K, you may take 5 K, you may take anything। एट टाइम्स प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज ऑफ कोर्स there's a cost associated, there's a specification associated, so K deciding factor, एक फैक्टर इसको डिसाइडिंग। तो सपोजिंगली हमने यहाँ पे K लिया 7। नेक्स्ट स्टेप में अब मैंने अरेंज कर लिया उसको, नाउ आई एम सेइंग दैट आई हैव टेकन द K एज 7। तो अब आप बाकी सब हटा दो फ्रॉम योर परव्यू, यू कीप ओनली द 7 डिस्टेंसेस विच यू हैव। 7 डिस्टेंसेस में यू फाइंड इजीली क्लियरली दैट येलो में you have 3 labels, gray में you have 4 labels, and there was an orange also which maybe I missed out in that first one। या पहले में orange भी था, 3 क्लासेस थे। ओ हाँ सॉरी, आई थिंक वो मेरा ऊपर आ रहा था ये चीज। so there is another third one, could you see that in this on the screen? Right, so there are 3 classes here and there's an orange also। तीनों classes, तीनों labels थे। तो तीनों से डिस्टेंस में जो हमने K7 लिया है, तो यू फाइंड दैट 3 distances are from yellow and 4 distances are from gray and 0 from orange। ठीक है। सो एक जनरल, इवन इफ आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द K नियरेस्ट एल्गोरिथम इज, मेरे अकॉर्डिंग कौन से ग्रुप में उसको डालना चाहिए?
जहां से मिनिमम डिस्टेंस के ब्लॉक सबसे ज्यादा है. सो मिनिमम डिस्टेंस के ब्लॉक सबसे ज्यादा है मेरे पास फ्रॉम येलो, बिकॉज येलो में 3 ऐसे इनपुट्स है जहां से के साथ उसका डिस्टेंस मिनिमम है. ठीक है. सो आई विल पुट दैट न्यू एंट्री इनटू येलो कैटेगरी. As simple as that. That is the process. Now going back to the process in terms of proper steps, select the number of K, what you want. Just a second. Of course, that's a decision to be made. Select the number of K of the neighbors. ठीक है. Calculate the Euclidean distance of K number of neighbors. सारे के सारे distances निकालो. ये तो कह रहा है कि K नंबर ही निकालो, बट हमने सारे निकाले. आप ये कर सकते हो कि you have to take out all of them. I don't know why they have written K number of neighbors. You have to take out all of them. Take the K nearest neighbors as per the calculated Euclidean distance. Right? So आपने सारे के सारे nearest neighbors को sort करके लगा दिया, arrange कर दिया उसको. अब उसमें से K निकाल लिए. I think that is a more logical thing. K nearest neighbors आपने निकाल लिए. 7 nearest neighbors to that particular input I have taken out. The sentence also makes sense. 7 nearest neighbors from that particular input. Among these 7 neighbors, count the number of data points of each category. तो हमने देखा वहां पे कि ऑरेंज येलो के 2-3 थे और ग्रे के 4 थे, या येलो के 4 थे, ग्रे के 3 थे. कौन सा था? What was the thing like? Oh yeah, sorry, I said that it should go to yellow. It should not go to yellow. It should go to gray. That's all. So yellow में there are 3 entries here, and in gray there are 4. So I should put that point in the gray वाला जो label है उसमें डालना चाहिए. So that is what the algorithm says. Among these K numbers, count the number of data points in each category that we have done, and then assign the new data point to that category for which the number of neighbors is maximum. जितने maximum number of neighbors, nearest neighbors हमको मिलेंगे जिस कैटेगरी के, उस कैटेगरी में हम उस इनपुट को डाल देंगे and our model is ready. Okay, so that is how we define the process for the K nearest neighbor algorithm. Am I clear with this? Do I make sense with the process? Show me a thumbs up. Oh, Vani, good. Thank you. What about you, Bhuvan? इसको ना सिंपल तरीके से दिमाग में पहले अंडरस्टैंड करो और उसके बाद गो बाय द प्रोसेस. And if you do that, you can easily then work out on these advantages and disadvantages and limitations, applications. ठीक है. यहाँ पे देखो अब क्या इंपॉर्टेंट हो गया सबसे ज्यादा, के. अगर आपने के ज्यादा लिया होता, बड़ा लिया होता, तो हो सकता है वो किसी और कैटेगरी में चला जाता. उसके बाद के 3, ये जो हमने सपोज 4 3 7 7 लिया ना, तो 7 के हिसाब से 4 वर फॉर द ग्रे वन. अगर मैंने 10 लिया होता और उसके बाद के तीनों डिस्टेंसेस मेरे येलो को बिलोंग करते, तो ऑटोमेटिकली वो येलो में चला जाता है ना. सो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट factor, which is my K. So it's totally dependent on that, this particular algorithm. So the limitation says computationally expensive, especially for the large data set. Obviously यहाँ पे मेरे अगर 4 सैंपल्स हैं एक क्लास के अंदर तो ठीक है. अगर यहाँ पे लाखों सैंपल्स होते हैं तो हर किसी का डिस्टेंस निकालना इज ऑफ कोर्स कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव. सबको ध्यान रखो, देन उस पूरे डेटा को सॉर्ट करो. इट टेक्स टाइम फॉर द मशीन ऑल्सो. ठीक है. सेंसिटिविटी, द चॉइस ऑफ द डिस्टेंस मेट्रिक and the number of neighbors, because the number of neighbors is a very very important factor, rather the most important factor here. One small change can change the complete output. Requires careful pre-processing and feature scaling, because feature के basis पे ही वो actually distance वाली story चलेगी. Not suitable for high dimensional data due to curse of dimensionality. Obviously जितने number of dimensions होंगे उतने number of inputs हो जाएंगे ना, फीचर्स हो जाएंगे. सो अकॉर्डिंगली वो चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. बट यस, दिस इज अ इजी प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन मॉडल एज सच फॉर अ बिगिनर स्टेज, एज व्हाट वी आर डूइंग नाउ. ओके,
So basic advantages are easy there. It's easy to implement and understand. कोई ऐसा explicit training नहीं चाहिए. Suitable for classification also and regression also. But we have a specific process for regression too, which we'll learn in the next class. And it is robust to the outliers. Outliers को ही हम जज करें ना कि बहुत दूर कोई एक इनपुट आया है जो कि बिल्कुल ही सिमिलर नहीं है किसी से, ऐसा एक बारी में नहीं समझ में आ रहा, तो ये प्रोसेस है जिससे कि हम लोग उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल सकते हैं एज पर इट्स फीचर्स. ओके, सो यहाँ पे द एप्लीकेशंस के अंदर वी टॉक अबाउट इमेज रिकॉग्निशन. वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इमेज रिकॉग्निशन ओनली कि वो डॉग और कैट कहीं पे अगर सिमिलर सिमिलर दिखते हो तो उसको डॉग की कैटेगरी में डालो या कैट की कैटेगरी में डालो, वो उसके फीचर्स पे डिपेंड करेगा. रिकमेंडेशन सिस्टम्स, हेल्थ केयर में भी ये चीजें हैं, बट देन यू नो हेल्थ केयर में इफ यू गो रॉन्ग, वी हियर अबाउट ऑल्सो ना कि वो कैंसर डिटेक्ट करा उन्होंने, उसकी मेडिकेशन भी शुरू कर दी, फाइनली पता चला उसको कैंसर था ही नहीं. These are the kind of problems which appear, which happen because of wrong predictions. And if it is a human-based prediction, then still okay. If it's a machine-based prediction, then it becomes a major issue. Text mining, sentiment analysis, any kind of prediction situation, it can be applicable, though the success rate depends upon the factor and the size of the data set. If the size of the data set is very huge, then we cannot really go about it. Okay, that's how my first unit ka part of machine learning is done, and we finish here. Next class, which I will inform you by today, because I want to take a class on Monday in the assembly timing. As next Saturday, it won't be possible for us to take. Most probably, though I'll just check around and tell you. Okay, because I want to finish up this machine learning unit at least with you people. So let's see. I'll keep you informed. Please go through it. These things are interesting. You're learning something very, very application-based thing and important also. Fine? पढ़ो एक बार इसको अच्छे से, उसके बाद हम इसके भी एक्सरसाइज और असाइनमेंट्स क्वेश्चंस करेंगे, which will help you understand better. Okay then. Bye bye. See you. Thank you, ma'am. Thank you.